These are sorry visuals of how the system surrenders before money, before the rich, and before the powerful. In Kanpur, Shivam Mishra, rich son of a rich tobacco manufacturer, hits his vehicle, which is a very expensive vehicle, on the road, runs over some people with his 8 crore Lamborghini, leaving few people seriously injured. And when people raise questions, this shameless rich brat gets his bouncers to misbehave with them. And if you thought after all this, the police would hold him accountable and teach him a lesson, well, then you, as always, are expecting too much. Ladies and gentlemen, I can't even use the word shocking anymore, as the police is yet to arrest this man. The police went to his house for a customary knock. And when nobody answered, they drew a sorry face and came back. The system gave him shelter with due respect because he has money, even ensuring that his expensive car does not get a scratch in the police station. The role of the police in this has been shameful, and that is why there has been one policeman who has been suspended, because the FIR initially did not even name Shivam Mishra. I just want to very quickly show you how this whole sequence of event took place. How he went on. This is an AI generated video which gives you a sense of what happened. This Lamborghini, in fact, revving on high speed, hits an auto rickshaw, goes on to hit a bike and pedestrians as well, a parked bike, and then goes on to hit few people. Some of them have been seriously injured. This, the rider, in fact, was flung to about 10 feet into air. The car then mounted a bike, the front wheels. It has some damage as well. And when there was outrage, when people were shouting, when there was, anger against him, the motorcycle was dragged a few meters. His bodyguards, his bouncers, when people, stopped him, they shattered the windows. His bouncers came, took him out of that car from the driver's side, and in there, look at that, they were misbehaving with the people, those who were trying to get close to him, and that the bouncers stepped in, took him away from the public. If you have money, this is exactly what you can do, and then even feel that you can get away with it in this country. There is important information coming in at this moment. As I told you, there was his name was not even registered in the FIR, which was in fact registered initially by the police. Now there has been action after NDTV has been continuously reporting on this. A policeman officer in charge of that police station has been suspended for negligence. Action has been taken against the cop who did not name Shivam Mishra in the FIR. Remember, his name was added later after the pressure from the media, and we started reporting this story. The cop who tried to shield Shivam Mishra has now been suspended. At least the government has taken some action. Ajay Dubey is joining me at this moment on the broadcast. Ajay, ये जो action हुआ है, this action which has been taken against the policeman, tell our viewers what has happened and what is the police doing? When will Shivam Mishra be arrested? Definitely, this is the impact of NDTV. We were running this news continuously. The shameful act done by the police, where we can easily and very easily we can see the visuals where the suspect who is driving the car, his bouncers are taking him out of the car. Visuals are very much clear, but in the FIR, the number of the vehicle is mentioned, but not of the suspect. We started running this news. We were asking questions to police. We were showing the report. We were showing the eyewitness who were telling the detail regarding the driver, and now his name is added into the FIR. And after this activity, now the action is taken against the policeman also. He's been line hazard. So action is taken against the policeman also. The senior bureaucrat from Lucknow also following whatever happened in Kanpur. The commissioner, he was informing that the driver is very much visible. Now the suspect, now the driver name is mentioned in the FIR, and investigation is going on in this case. So this is a big time impact of NDTV in this issue.
All right, thank you for joining me with all those details at this moment. I'm being joined by Yash Singh Rajawat. He is Shivam Mishra's friend who is joining me on the broadcast. Mr. Rajawat, thank you so much for speaking to us here on NDTV. On a day like this, I would say brave of you to in fact come out to speak for your friend. Let me ask you this, sir. Thank you so much. Is this the behavior? Is this the usual behavior of Shivam Mishra? इस तरह की हरकतें देखिए, करते मैं रहते कहना हैं? चाहूंगा जो ये कानपुर में हादसा हुआ है ये आमतौर पे डेली होता रहता है। ये कोई छोटा मोटा एक हादसा है। अगर यहीं पे कोई ऑल्टो कार होती तो इतना बड़ा इसको मुद्दा ना बनाया जाता, पर ये एक लैम्बोर्गिनी कार थी इसलिए इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। रजावत साहब जी ये छोटी बात है? देखिए, अभी आए दिन हम देखते हैं, हम जब कोर्ट जाते हैं तो आए दिन रास्ते में कोई कार तो वो किसी ठीक को हो भिड़ जाता है जाती क्या? पर ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, है। अगर ऑल्टो कार है या कोई और कार है तो वो ठीक हो जाता है, छोटी बात है, इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए। पर नहीं, एक्सीडेंट तो देखिए रोड में दुर्घटना होती है, रोड खराब है। अब हम स्कूटी से जाते हैं, कभी कार से जाते हैं, रोड खराब है। अब हम इस स्लिप होकर गिर जाते हैं बारिश में। अभी कानपुर का हाल वैसे बहुत खराब है। हाँ। तो इसको हम सरकार को भी नहीं ब्लेम कर सकते। ठीक है, हमें सुरक्षित होकर चलना पड़ेगा। अब जो लिखा नहीं है तो वो तो होना ही नहीं तो सुरक्षित का क्या मतलब है रजावत साहब? आप अपनी गाड़ी से पहले एक ऑटो को टक्कर मारें, फिर एक बाइक को टक्कर मारें और उसके बाद जो बाइकर है वो उड़ के नीचे गिर जाए और लोग उसमें 6 लोग घायल हो जाएं, ये छोटी घटना है। देखिए वो एक मशीन है, पर अगर देखा जाए, अगर मान ली गलती अगर हुई है तो वहां से कोई नहीं। मान लीजिए गलती हुई है, ऑन स्पॉट वहां पे राजावत साहब मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। आप इस वक्त, राजावत साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। राजावत साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। यश जी आपको एक बात याद दिला देता हूं, नेशनल टेलीविजन पे हैं आप और जो भी आप बोलेंगे वो बहुत सारे लोग देखेंगे और हमेशा के लिए ये बात आपकी जो याद रहेगी लोगों को। तो आप मुझे बता रहे हैं कि कुछ भी ऐसा छोटी मोटी घटना गलती हो जाती है, पर देखिए ऑन द स्पॉट जो वहां पे मौजूद था जिसके साथ घटना घटी उसको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल भेजा गया, तुरंत उसका एक्सरे हुआ, उसको एक जगह संतुष्टि नहीं मिली, दूसरी जगह उसको ले जाया गया। बाउंसर के साथ में 2-3 लोग साथ में उसके गए, उसका तुरंत वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया हो, हम लोग वहां से चले गए हों। रजावत साहब अगर मैं आपके घर में आऊं और उसके बाद आपके ऊपर कुछ हमला कर दूं और फिर आपको अस्पताल ले जाऊं तो क्या उससे मेरी गलती कम हो जाएगी? सर ये आप इंटेंशनली बोल रहे हैं। अगर ये हम गाड़ी से जा रहे हैं, इंटेंशनली इसलिए बोल रहा हूं, तो चले गाड़ी कहीं और चली जाती है और उससे किसी को इंजर्ड हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है उससे, तो सर इसको हम एक मतलब इंटेंशनली नहीं हुआ है ये जो हुआ। एक्सीडेंट कैसे होता है? घटना हुई है। एक्सीडेंट इंटेंशनली नहीं होता। टक्कर लग गई एक ऑटो में, मान ली बात, उसके बाद एक मोटरसाइकिल में भी टक्कर लग गई, इंटेंशनली वो भी नहीं था। आसपास जो लोग खड़े थे उन्हें भी टक्कर लग गई, इंटेंशनली वो भी नहीं था। और जब लोग वहां आए तो उनके बाउंसर्स ने उनके साथ मारपीट की, वो भी इंटेंशनली नहीं था। सर इसका कोई फुटेज आपके पास नहीं अवेलेबल होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। किसी बाउंसर ने किसी के साथ मारपीट नहीं करी। और बात रही गाड़ी जो ऑटो से भिड़ी है, जाके जो बुलेट में बैठा हुआ था, बाइक में कार भिड़ी, कम स्पीड में कार थी उस समय, और जब कार भिड़ी है तो बाइक सवार को एक खरोंच नहीं आई, और बाइक जिसके ऊपर गिरी है उसके पैर में बाइक गिरी है, माइनर था, उसको हल्का सा स्क्रैच आया है पैर में, उसको स्वेलिंग आ गई है। अगर कार बहुत हाई स्पीड में होती, ठीक है माना कि लैम्बोर्गिनी है वो, अगर कार बहुत हाई स्पीड में होती तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना थी। तो फिर क्यों शिवम मिश्रा, अगर कुछ हुआ नहीं तो शिवम मिश्रा इतने भले आदमी हैं तो उनको क्यों उनके बाउंसर्स वहां से निकाल के ले गए? खुद खड़े होते, लोगों को वहां पे मदद करते। शिवम मिश्रा जी उस हालात में नहीं थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी नाक स्टीयरिंग में भिड़ी तो ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो गए, वहां पे नाक से खून आने लगा। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, सुनिए, वीडियो की बात कर रहे हैं। वीडियो में बिल्कुल हंसते मुस्कुराते आराम से लेटे हुए जा रहे हैं उनके बाउंसर, ना नाक से खून आ रहा है, ना वो परेशान हो रहे हैं। सर आप ये पुलिस प्रशासन से बात करिएगा, सामने नाक से इनके खून आया था, ये कोई भी बनाई हुई बात नहीं है, बिल्कुल साक्षात प्रशासन के सामने है सब चीजें। आपको पता है ना शिवम मिश्रा को एफआईआर में मेन अभियुक्त के तौर पर उनका नाम दर्ज किया गया है जी। शिवम मिश्रा का एफआईआर में मेन अभियुक्त के तौर पर नाम दर्ज किया गया है। सर देखिए, अब ये प्रशासन के ऊपर है, वो जिनको गलत ठहराएगी, अगर जो गलत इसमें पाया जाएगा उसका बिल्कुल हम तो कहेंगे, चाहे वो शिवम मिश्रा जी हो, चाहे वो अन्य आदमी कोई भी हो, अगर वो जानबूझ कुछ गलती कर रहा है, अगर उसमें गलत अन्य कौन है? गाड़ी तो वही चला रहे थे, तो इसमें अन्य कहां से आ गया? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई ऐसे सर, अब हम भी रोड में चलते हैं, किसी का दुर्घटना घट जाती है, अगर कोई गलत होता है उसके साथ एफआईआर होनी चाहिए उसके साथ। हम ये कोई एफआईआर के बाद अरेस्ट भी होना चाहिए, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे अब तक? वो
खुद समर्पण करने जाके? अरे सर, कैसे अगर अब वो खुद ना आ रहे हो चल के, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था अगर खुद ना चल के आ रहे हो वो पुलिस स्टेशन पे, ना पुलिस ने उनको एक कॉल करी, ना उनको कुछ मैसेज करा गया, ठीक है वो घर गए, अगर वो घर अच्छा, गए, तो ये आपने बढ़िया बात बताई कि पुलिस ने अभी तक कुछ उन्हें ना तो ना बुलाया है ना कॉल किया है। इसका मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि क्योंकि शिवम मिश्रा इतने रसूख वाले आदमी हैं, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, मैं कह रहा हूँ पर्सनली शिवम मिश्रा के पास कॉल नहीं गई होगी, क्योंकि वो इस सेंस अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अगर उनको कॉल करी जाए, वो अभी किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना नर्वस हो गए इस हादसे के बाद में। कितने नर्वस कि अपने वहां से निकल गए और बाउंसर से बोला कि भाई हमको सुरक्षित ले जाओ, इतने नर्वस? नहीं, बाउंसर नहीं, हम भी वहां पे मौजूद थे और अन्य बाउंसर और उनके परिजन भी वहां पे मौजूद थे, सबके साथ में सबके सामने देख रेख करी गई है। नहीं तो आप लोग सब मौजूद थे, तो आपने एक व्यक्ति को जो खुद गाड़ी चला रहा था शिवम मिश्रा, एक्सीडेंट करते देखा, तो उसे आप डिफेंड किस बात का कर रहे हैं? सर हम डिफेंड कहीं नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि रोड है, रोड में दुर्घटना घटती है, आए दिन किसी के साथ दुर्घटना घटती है। मतलब अमीरों से ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं? अच्छा नहीं, अब हम एक सवाल का आपसे वो करेंगे कि अब क्या पुलिस की जीप से कभी हादसा नहीं हुआ? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हादसा जिस तरीके के अमीरों से छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी टक्कर, लोगों को चोट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें अमीर की बात ही नहीं आती है, इसमें अमीर की बात इसलिए नहीं आती है, अब मैं बताता हूं जी, वो इनकम टैक्स भी तो उतना ही भर रहा है जितना वो अमीर है, तो अमीर की बात कैसे आ गई इसमें? फिर नहीं तो इनकम टैक्स भर रहे हैं और तो उसका मतलब लैम्बोर्गिनी लेके किसी पे चढ़ा देंगे? सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, कानपुर में कितने हादसे होते हैं, ऑल्टो साथ में चढ़ा देते हैं। अरे भाई कानपुर में 1000 हादसे होते हो, तो वो ठीक थोड़ी हो जाते हैं, तो वो ठीक थोड़ी हो जाता है कि सब कुछ, अगर कोई हादसा हो रहा है चाहे स्कूटर से हो या लैम्बोर्गिनी से हो, तो उससे ठीक थोड़ी हो जाता है। स्कूटर से जिनके हादसे होते हैं उनके घर वाले या उनके मित्र आके ये थोड़ी बताते हैं कि छोटी मोटी बातें ऐसे हादसे होते रहते हैं। सर शहर के अंदर ये छोटी मोटी बात है, कोई हाईवे पे बहुत बड़ा हादसा हुआ तो एक बात है, शहर के अंदर बहुत धीमी स्पीड में थी, अगर ज्यादा तेज स्पीड में वो होते क्या करते हैं तो हमें नहीं लगता कोई बचता, जितनी वो पावरफुल कार है, हमें नहीं लगता शायद उससे कोई बचता। क्या करते हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। आप इसीलिए आप शायद अपने एडवोकेट होने का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस एम्बिग्यूटी का, और क्योंकि आपके जो मित्र, आपके जो दोस्त, आपके जो मुवक्किल हैं वो बहुत रसूख वाले हैं, तो इसीलिए आपके अंदर शायद इतनी हिम्मत है कि इस हादसे के बाद भी आप आके बोलें कि छोटी मोटी बात है, होती रहती है। सर वो अमीर हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, तब वो सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं कि उन्होंने, शिवम कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया पे उसके बाद भी जो उन्होंने किया वो सही नहीं होता। मुद्दा क्यों बनाया जाता है? उसके बाद भी वो सही नहीं होता, और मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि इस तरीके के लोगों को ये ना लगे कि वो कानून से ऊपर है। पुलिस उनके, जैसे आपने खुद बताया कि फोन करके पुलिस इंतजार कर रही है कि शिवम मिश्रा साहब का कब मन होगा, कब वो इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और तब उनके ऊपर सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर ये एक ऑल्टो की बात आपने की थी, अगर ये ऑल्टो वाला आदमी होता, अब तक पुलिस उसको उल्टा टांग चुकी होती थाने में और अब तक वो जेल के पीछे होता। राजावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ये सब बातें बड़ी छोटी लगती हैं कि कानपुर जैसे शहर में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सर यहाँ की सड़कें भी पूरा यकीन है कि लोग इस बात को, और यश सिंह राजावत साहब की इस बात को लोग याद जरूर रखेंगे कि कानपुर शहर में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हर जगह रोड खुली पड़ी है, हर जगह माहौल बहुत खराब है। आप कानपुर आके जरूर घूमिएगा, इतना हम आपसे विनती करते हैं। मैं बिल्कुल आऊंगा सर, और अगर इतनी सड़कें खुद ही पड़ी हैं तो लैम्बोर्गिनी लेके मत निकलिएगा तेज गति से, और उनको भी बताइएगा ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आई हैव टू स्लिप इनटू अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक एट दिस मोमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बट दिस इज ऑफ कोर्स, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ लॉयर, छोटी मोटी घटना। एंड व्हेन यू आर अ रिच पर्सन विद द काइंड ऑफ प्रिविलेज and the kind of resources that this boy has, this man has, then of course it's a choti moti ghatna. Now the question is to the government whether they will let go of this choti moti ghatna or make an example that no rich brat can tomorrow think you can run over people and say choti moti ghatna.